اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کر لوں؟ ذرا ٹھہر اے دل، میں استخارہ کر لوں۔ استخارہ یہ کہتا ہے کنارہ کر لوں، دل یہ کہتا ہے استخارہ دوبارہ کر لوں۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں مونم ملک کا لکھا ہوا خوبصورت ناول نمکین پانیوں کا سفر۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اسے شیئر کرنا بھی بالکل مت بھولیں۔ نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمکین پانیوں کا سفر، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ حاکم گھرانے میں بھونچال آ گیا تھا۔ جو شک تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ تاجور کی خاموشی بتا رہی تھی کہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ایک بات چیخ کر واضح اشارہ کر رہی تھی کہ یہ کتنے لوگوں کی ملی بھگت تھی۔ نیلم سن کر کتنی ہی دیر تاجور کی صورت تکتی رہی۔ نہ جانے اسے اطمینان حاصل ہوا تھا یا دکھ، کوئی سمجھ نہ سکا۔ وہ ہر شام تاجور سے ملنے آتی تھی، بس تاجور کے پاس ہی بیٹھی رہتی، ایک آہ بھر کر کہتی جاتی، کاش میرے بھائی نے جلد بازی نہ دکھائی ہوتی، میں ثانیہ کو اپنی بہو بنا کر لے جاتی۔ اسی وقت صبا خان کو یہ بات بہت گرا گزرتی۔ گزرے وقت نے نیلم کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو یا نہیں، مگر اسے اولاد سے ضرور نوازا تھا۔ یہ ظہر کا وقت تھا جب صدام حسین کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ کمرے میں آئی تھی۔ ہر وقت صرف انہی کے بکھیروں میں پڑے رہنا، کچھ اپنی اولاد پر بھی دھیان دے لو۔ کیا ہوا ہے؟ صدام کا دماغ کھویا ہوا تھا۔ تمہاری اپنی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہیں اور تمہاری بہن محترمہ کی تو جیسے ایک ہی بھابھی اور ایک اسی کی اولاد عزیز۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس پر الٹ پڑا تھا۔ یہی کہ اپنی بہن سے بات کرو کہ تمہاری بیٹی بھی موجود ہے، اس سے رشتہ جوڑ لے اپنے اکلوتے بیٹے کا۔ ان کی شادیاں بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر صدام نے ایسے دیکھا گویا اس سے زیادہ دماغ صبا کا خراب ہو گیا ہو۔ یہ بھلا کوئی وقت تھا ایسی باتوں کا؟ اس سے جواب نہ دیا گیا تھا کہ دروازے پر دستک پڑی۔ نیلم نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باقی کا دروازہ پھر خود ہی کھٹکتا چلا گیا۔ شکیلہ چادر اوڑھے ان کے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور شکیلہ کے پیچھے وردی میں 3-4 پولیس اہلکار۔ اس نے میرے شوہر پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اسے حراست میں لے لیں۔ کمرے سے نکلتے صدام کی طرف انگلی کر کے شکیلہ حیات کے اس دعوے نے وہاں موجود ہر شخص کو ششدر کر دیا تھا۔ تاجور کھلے منہ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شکیلہ؟ نیلم کا چہرہ گھبراہٹ سے پھیکا پا رہا تھا۔ وہ ایک نظر انسپکٹر پر ڈالتی، دوسری اپنے بھائی پر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کسی بھی حرکت سے پہلے حاکم کی روبدار آواز سارے میں گونجی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے شکیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ حوصلہ رکھ کر بات کریں جناب، یہاں پر قاتلانہ حملے کی جرت بڑی دیدہ دلیری سے کرتی جاتی ہیں اور آپ قدم رکھنے پر مائنڈ کر رہے ہیں؟ انسپکٹر ارشد کے گھنی مونچھوں والے لب مسکرا اٹھے تھے۔ صبا خان کی رنگت اڑ چکی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہماری لڑکی چھپا کر الزام بھی ہم پر؟ یہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا حاکم حسین۔ شکیلہ کا چہرہ مارے تیش کے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہر بار انچاہے رشتوں کا لحاظ، لیکن یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے وہ کر گزرے۔ اب انگلی بھی بڑھی تو ہاتھ کٹے گا۔ وہ ایک کو دیکھتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے انسپکٹر ارشد کی طرف دیکھا۔ آپ پر پرچہ ہو چکا ہے، آپ اسے۔ ان کے اشارے پر 2 اہلکار صدام کی طرف بڑھے اور اس کو ہتھکڑی پہنانے لگے۔ حاکم یہ؟ صدام نے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی۔ ذلت کا احساس پیشانی کا پسینہ بن کر چمکنے لگا۔ شکیلہ، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ، روکو اسے۔ حاکم کی گراہٹ بلند ہوئی۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کو چھپا رکھا ہے، پوچھیں ان سے کہاں رکھا ہے اس کو۔ آپ نے اپنی بیٹی کی رپورٹ درج کروائی؟ سکون سے سوال کیا گیا۔ ہم اپنی عزتیں تھانوں میں نہیں اچھالتے۔ حاکم نے پلٹ کر ایک سلگتی نگاہ خاموش کھڑی تاجور پر ڈالی تھی۔ اپنا معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے، فی الحال تو آپ اس کیس سے نکل کر دکھائیں۔
हमारी मेहमान नवाजी आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगी। हाकिम को दस्तगीर के साथ उसकी दोस्ती का बहुत अच्छी तरह से मालूम था और ये धमकी महज धमकी नहीं हो सकती थी। मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। हाकिम ने शकीला पर एक नजर डाली, दूसरी ताजवर पर। अपनी बहन को रोको। हाकिम ने ताजवर को आंखों ही आंखों में सर्द मोहरी से बहुत कुछ कहा था। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, इसे कहो यहाँ से दफा हो जाए। आज ताजवर कुछ नहीं बोलेगी। शकीला ने तेज आवाज में हाकिम को ललकारा था। ताजवर खाली खाली आंखों से उसे देखे गई। आज इस दर पर ताजवर की बहन नहीं, दस्तगीर की बीवी खड़ी है। मैं अपने शोहर को पहुंचाई तकलीफ पर अपनी बहन की बात भी नहीं रखूंगी। उनकी आंखों से झलकती सख्ती बता रही थी वो सच बोल रही है। ताजवर कुछ नहीं बोली, बस उन्होंने नजरें फेर ली। नीलम इल्तिजाइया अंदाज में शकीला के सामने आई थी। शकीला, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। हालात तुम जानती हो। मेरे भाई को थाने जाने से रोक दो। उसकी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर लो, एक मजबूर बहन हाथ जोड़कर कह रही थी। शकीला जख्मी निगाहों से उसे देखने लगी। मेरे शोहर की बुजुर्गी का ख्याल किया तुम्हारे भाई ने? वो किस बात की सजा भुगतते? इस बात की कि बदकिस्मती से तुम हमारे रिश्तेदार हो। उस पर फट पड़ी थी। नीलम कुछ बोल ना सकी। तुम सब, उसने ताजवर को छोड़कर वहां मौजूद हर फर्द की तरफ इशारा किया था, तुम सब लोग दीमक की तरह हो जिसने हम लोगों को अंदर से खोखला कर दिया, ऐसी मुसीबत की तरह जिसे जिंदगी भर हम पीछा ना छुड़ा सके। चलो, उन्होंने बेदर्दी से कहते हुए कदम मोड़े थे। ताजवर पलटकर अंदर जाने लगी। सद्दाम हुसैन को बाजू से पकड़े दो पुलिस एहलकार बाहर निकालने लगे। और हाँ, सीमी मेरी बेटी है, मेरे बेटे के निकाह में। ये तो छोटा सा नजारा है। पुलिस और सद्दाम की तरफ इशारा किया। आप किसी ने मेरे शोहर और मेरी औलाद को आंख उठाकर देखा तो याद रखना। घायल शेरनी हमले में सिर्फ जख्मी नहीं करती, निगल भी लेती है। वो झपाक से बाहर निकल गई थी। पीछे से सबा खान का शोर सुनाई देने लगा। सद्दाम हुसैन को अंदर बिठाने और जीप स्टार्ट होने तक हाकिम और सबा की सारी मिन्नतें अकारत गई थी। कच्ची पगडंडी की धूल उनके चेहरों पर उड़ने लगी। हाकिम घराना मिसले बाहिश्त के लिए पीटीवी का वो ड्रामा बनकर रह गया था जो अचानक और वक्त बे वक्त नशर हो जाता। लोगों का काम काज छोड़कर मुतवज्जा होना ही पड़ता था। चंदा जब से आई थी जमीन पर बैठी सिर्फ आंसू बहाए जा रही थी। करम इलाही की आंखें बंद थी, लेकिन वो सो नहीं रहा था। फिर भी अब तक उसने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था। तुम्हारे रोने से क्या होगा चंदा, खुद को हल्कान कर रही हो। सानिया ने उकताकर उसे पानी का गिलास पकड़ाया था। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। ये मान टूटने का गम है, मोहब्बत मजरूह होने का दुख। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया वो अंदर से इतना कमजोर और दगाबाज निकलेगा। वो एक बार फिर फुपक फुपक कर रो दी। शायद जब इंसान कुछ कर ना सके तो अपना दिल इसी तरह हल्का करना चाहता है। यही तो तुम्हारी गलती है, तुमने उस पर अपनी आंखें बंद कर ली। वो जो कहता है तुम मान लेती हो। मोहब्बत में भी आंख खुली रखनी चाहिए। तुम्हारा शोहर है, उसकी हर अदा तुम्हें मालूम होनी चाहिए। सानिया, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो एकदम से मुंह उठाकर सानिया को देखने लगी थी। क्या शादी के मुख्तसर अरसे में ही उसके दिल से उतर गई जो वो बात तुम्हारी खूबसूरती की नहीं, उसके दिल की बदसूरती की है। सच बताना चंदा, क्या तुम नहीं जानती थी कि ये किस किस्म का आदमी है? सानिया के इस्तफसार पर उसे नजरें नहीं मिला पाई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। उसने वही रवायती जुमला बोला जिसकी सानिया तवक्का कर रही थी। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे हमारी बेटी चांदनी है, उसे कोई चांद जैसा मिले, मगर मेरे लिए तो यही चांद है। इसलिए जब वो ना माने तो मैंने उन्हें छोड़ना गवारा कर लिया, मुजम्मिल को नहीं। यही तो हमारी भूल होती है चंदा, उसे रोना देखकर तासुब से बोली थी। हम लड़कियां कभी कभार बहुत नादानी वाला काम कर जाती हैं। वो माँ बाप जो सालों से हम पर मोहब्बत लौटाते आ रहे होते हैं, हम उन पर बस चंद माह या साल की मोहब्बत को फोकियत दे डालते हैं। चंदा, हम उनकी मोहब्बत ठुकरा कर, उनका मान तोड़कर जब आगे बढ़ जाते हैं तो क्या हमें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? इस दर्द से हमारे दिल कैसे महफूज रह सकते हैं जो हम अपने बेगुनाह वालिदैन को देते हैं, इस पादाश में कि उन्होंने हमसे बेगर्ज मोहब्बत की।
ثانیہ संजीदगी से चंदा को बता रही थी और वो हैरत से इस कम सिन लड़की को बातें सुन रही थी जो जिंदगी का सबक पढ़ा रही थी उसको। मेरी जिंदगी में भी कोई था चंदा, ये भूल शायद हम सब से होती है, मगर कोई वक्त से पहले संभल जाता है। अच्छा है कि अब वो मेरी जिंदगी में नहीं, वरना वो भी शायद हर मौके पर मुझे ताना देता के। सानिया की जुबान उगले अल्फाज निकालने से इनकारी हो गई थी। क्या उसका दिल इतना बदगुमान हो चुका था कि वो शमरेज को बहुत कम ज़र्फ समझने लगा था? यकीनन हाँ। अपनी जिंदगी का सच वो उस लड़की से सामने बोलने पर मजबूर हो गई थी। शायद कहीं ना कहीं उसका दुख भी उससे मिलता जुलता था। यकीन करो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली मोहब्बत से पनाह तलब कर लेनी चाहिए। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरती है। हमें लगता है हम मर जाएंगे, लेकिन दरअसल हम तब जिंदा रहते हैं, बाद में मर जाते हैं। मैं अंधा यकीन करती थी उस पर, उसने मेरा ख्याल नहीं किया। वो फिर से शिकवा कर रही थी। सानिया उदासी से मुस्कुराई। अगर करम इलाही ना मानता तो अब भी अपने शोहर की साइड लेती, मेरी नहीं। सानिया की बात पर वो नजरें चुरा कर रह गई। सच बताना, क्या तुम्हारे दिल ने गवाही नहीं दी कि गलत तुम्हारा शोहर भी हो सकता है? चंदा अब की बार भी कुछ नहीं बोली थी। उसकी खामोशी उसका जवाब थी। तुम किसी तरह अपना झूठा भरम कायम रखना चाहती थी। तुम चाहती थी तुम दोनों नजरें मिलाने के काबिल रहो, लेकिन यही चीज मजीद बिगाड़ का सबब बनती है। तुम उसका साथ देती जाती और वो शेर होता जाता। नहीं, अब मैंने उसका साथ नहीं दिया। मेरा उससे बहुत झगड़ा हुआ है। मेरा यकीन करो, वो तरफ कर बोली थी। आईने में उसकी सूरत भयानक आ रही थी। बिला वजह की तरफदारी का अंजाम बुरा होता है। मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जानती हूँ तुम सिर्फ करम इलाही से रकम लेकर शोहर का बोझ कम करना चाहती थी, मगर वो तुम्हारा हक है। तुमने जरूरत से ज्यादा उसे छूट दे रखी थी। उसने बेलगाम होना ही था। तुम ठीक कह रही हो। और फिर जब सर पर ना वालदैन का हाथ हो ना ससुराल का, कोशिश करो कि मैं घर जाने का फैसला कर चुकी हूँ। चंदा ने एकदम सानिया को खामोश करा दिया था। भरों का हाथ सर पर हो तो औरत की बहुत इज्जत बनी रहती है, वो लावारिस नहीं लगती। मेरे ससुर ने यह कहकर निकाल दिया था कि वो घर से भागी लड़की को कबूल नहीं करेंगे और ना उनका बेटा मेरा वफादार होगा। फिर सानिया को तरस आया। शायद वो अपनी औलाद से वाकिफ थे, मुझे वापस भेजना चाहते थे। मैं जाकर उनके पांव पकड़ लूंगी, इसी चौखट पर पड़ी रहूंगी। उन्हें मुझे कबूल करना पड़ेगा। उसकी आंखें फिर से बरसना शुरू हो गई। और अपने वालिदैन से भी औलाद पत्थर दिल हो जाती है, माँ बाप नहीं। शायद। सानिया ने अफसुर्दा सांस फिजा के सुपुर्द की थी। घर से भागी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती सानिया। दुखी दिल और दुखी आंखों के साथ वो जाते जाते बोली थी। मैं दुआ करूंगी जितनी तुम अच्छी हो, तुम्हारी जिंदगी में भी उतना ही अच्छा हो। वो पलक झपकते ही दीवार कूद गई थी। सानिया साकत सी बैठी रही। चंदा उछलती कूदती हमेशा आती जाती थी, कभी दरवाजे से अंदर ना आती। हम अनमोल से लोग कितनी बेदर्दी से खुद को बेमोल काट डालते हैं। वो दीवार की मंडेर को तकती सोचे गई। जानती थी चंदा को वो दोबारा नहीं देख पाएगी। अगली सुबह उसके घर के लकड़ी के दरवाजे पर बड़ा सा ताला झूल रहा था। मिसले बहिश्त से उनका चैप्टर क्लोज हो चुका था। मनाहिल अपने इर्द गिर्द सारी किताबें फैलाकर बैठी थी। सीमी उसको होमवर्क करवा रही थी। मनाहिल हर लफ्ज लिखने पर, कोई नई बात आने पर कलम रोक लेती। फिर सीमी बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा लिखने पर माइल करती। मनाहिल, सबसे पहले होमवर्क मुकम्मल करो, बातें हम बाद में कर सकते हैं ना। साथ साथ क्यों नहीं? उसने पेंसिल होंठ पर रख ली। क्योंकि इस तरह आप फोकस नहीं कर पाएंगे और गलतियां हुई तो टीचर नोट लिखकर भेज देंगे। फिर आपके मम्मा पापा कहेंगे कि मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं रही। सीमी ने आंखें गोल गोल घुमाकर उसे समझाया था। मनाहिल को तशवीश हुई। मम्मा पापा मुझे डांटेंगे? और मुझे भी? सिमी को हंसी आ गई। मिनाहिल तवज्जो से लिखने में मगन हो गई तो सिमी उसकी कलर पेंसिल से खेलने लगी। पेंसिल उसके हाथ में आई तो दिल कागज की तरफ मचलने लगा। बहुत दिनों बाद उसके हाथ में कलर और कागज आया था। आप कलम से मोहब्बत करते हो तो कलम की तलाश में रहते हैं, लेकिन कलम आपसे मोहब्बत करता हो तो वो आपके पीछे पीछे आता है, आपकी गिरफ्त के लिए सरगर्दा, उंगलियों में आने को बेताब। कलम को सिमी से मोहब्बत थी। वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से मुनाहिल की कॉपी के आखिरी सफ़े पर छोटे छोटे बेतरतीब से फिक्रे तहरीर करने लगी। अपने कुछ पसंदीदा जुमले, कुछ किरदारों के नाम, किसी की कही बात,
किसी किरदार का लिखा खाका, चंद अशार, उसके ज़हन पर छाया गुबार सा जैसे हटने लगा, दिल पर बोझ सिरकने लगा। वो कलम इसी तरह सफ़े पर घसीटती रही, यहाँ तक कि खिज़र की आमद और उसकी मौजूदगी से भी बेखबर लिखती चली गई। खिज़र ने दोनों को इस तरह बैठे देखा तो शर्ट की आस्तीन ने मोड़ता हुआ आरामदेह होकर उनके साथ आ बैठा। हमारे घर में दो दो स्टूडेंट्स नजर आ रही हैं। खिज़र की आवाज़ पर सिमी ने चौंक कर सर उठाया। ये एक स्टूडेंट नहीं, पूरी क्लास है। सिमी ने मनाहिल की तरफ इशारा किया। खिज़र ऊंची आवाज में हंसा। तंग आ गई तुम इससे? नहीं तो उसकी स्मार्टनेस की वजह से कह रही हूँ। सिमी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? वो लिखना छोड़कर मुतवज्जा हुई। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। खिज़र ज़ेरे लब मुस्कुराया। एडमिशन? मैं? वो हैरान सी रह गई। हाँ तुम। हैरत की बात है, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मजीद तालीम हासिल करो? मेरा दिल तो तुम्हारे बारे में बहुत चाहता है। खिज़र ने अपनी राय बयान की। मैंने कभी सोचा नहीं। वो तज़-बज़ब का शिकार हो गई। जब चांस मिल रहा हो तो सोच लेना चाहिए। वैसे भी मैं ऑफिस जाने लगूंगा तो तुम अकेली क्या करोगी सारा दिन? वो दोस्ताना अंदाज में उसे दरियाफ्त कर रहा था, गोया अभी तो खिज़र उसे कंपनी देने के लिए मौजूद था। उसके बाद की तन्हाई से वो फिक्रमंद हो रहा था। आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था? उसमें यकदम दिलचस्पी पैदा हुई। नहीं, हालांकि मैं चाहता था। फिर? वो समझी नहीं। हाशिम भाई के बिजनेस में पार्टनरशिप है। बाबा ने उन्हें बिजनेस सेट करने में हेल्प की। मैं अपनी तालीम मुकम्मल होने से पहले फील्ड में नहीं आना चाहता था, इसलिए अब तक सब वही देख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सिमी को अच्छा लगा था। शायद मैं चाहता था मैं पहले एक्सपीरियंस हासिल करूं, उसके बाद अपना बिजनेस संभालूं, मगर बाबा और हाशिम भाई इस हक में नहीं हैं, सो मुझे अपनी फर्म ज्वाइन करनी है। इंशाल्लाह आप कामयाबी से सब सीख लेंगे। सिमी मुतासर हुई थी। अच्छा? खिज़र मुस्कुराया। तुम्हें इतना यकीन है मुझ पर? आपको खुद पर होना चाहिए। सिमी ने मुस्कुराहट छुपाने को सर झुका दिया। अच्छा दिखाओ, क्या लिख रही हो? खिज़र की नजर मुख्तलिफ रंगों से लिखी सतरों पर गई थी। कुछ नहीं, बस यूं ही। सिमी ने सफ़ा जरा सा आगे किया। सबसे ऊपर सबज कलर की पेंसिल से लिखा था। नीले पानियों के तालाब पर तैरते राजहंस की मानिद था खिज़र हयात। ये एक किरदार के खाके पर लिखी पहली सतर थी। खिज़र पढ़कर मुस्कुराया। नमकीन पानियों के सफर का हीरो। हीरो? सीमी ने उसका लहजा नकल करके जैसे चराया। कुछ लोगों से जलने की स्मेल आ रही है। वो नाक लंबी करके इधर उधर सूंघने लगा। खुशफहमी। सिमी ने घूरा। क्या ही खूबसूरत लाइन है। खिज़र ने उसे तंग करने को बोला। शुमाइला ने लगता है गहरे मुशाहिदे के बाद लिखा है। ये इसे मैंने सजेस्ट किया था। खिज़र साहिब, सिमी ने अल्फाज पर जोर देकर उसे जताया। ये नाम? वो मसनूई हैरानी से बोला। एक बात सच बताना, क्या मुझे देखने के बाद? जी। वो धीरे से मुस्कुराई। मुझे ये नाम बहुत पहले से प्यारा लगता है। उसके मैनी बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैंने सोचा ये नाम क्यों नहीं। जब शुमाइला ने बताया, वो पहली बार एतराफ़ कर रही थी। उसके चेहरे पर खूबसूरत से रंग बिखरे थे। खिज़र इन रंगों को दिलचस्पी से देखे गया। तुम्हारी चॉइस बहुत शानदार है। अपनी तारीफ कर रहे हैं या मेरी? तुम्हारी करूं तो नाराज हो जाओगी। खिज़र शौक हुआ। सख्त नाराज। सिमी ने धमकी दी। तुम्हें मालूम है, मैं कभी अपने नाम के साथ खिज़र दस्तगीर लिखता हूँ और कभी खिज़र हयात। मेरी माँ को मेरे नाम के साथ हयात लगाना बहुत महबूब है। उसकी नजरें सिमी के चेहरे का तवाफ कर रही थी। सिमी ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन तुमने भी मेरा नाम खिज़र दस्तगीर के बजाय खिज़र हयात रखा, जबकि तुम्हें तो मालूम भी नहीं था। जी, दस्तगीर भी बहुत खूबसूरत लगता है, मगर मैं हमेशा खिज़र हयात रखती। ये दो नाम एक साथ जुड़कर ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे का हिस्सा हों। उसकी दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह क्या? वो सिमी की इस कदर गहराई में सोचने पर मशहूर हो रहा था। ये नाम हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इनसे मोहब्बत हमारी रगों में मौजूद खून में शामिल होकर आई है। हयात मेरे नाना का नाम था। सिमी इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत और इतने शीरीं लहजे में वो नाम ले रही थी कि खिज़र का दिल चाहा वो उस पर बोलती रहे और खिज़र सिर्फ सुनता चला जाए। वो उसको हर बार इसी तरह मबहूत कर देती थी। स्ट्रेंज, हैरान कुन। कई लम्हे बाद वो सरगोशियाना बोला था। सिमी ने नहीं सुना। हयात मेरे भी नाना का नाम है सिमी। खिज़र ने ऐसे तासुरात से बताया जैसे उस पर इंकशाफ कर रहा हो। सिमी को जोर से हंसी आई। अब तुमने पूछा नहीं कौन हो तुम? सिमी की बात पर दोनों बेसाख्ता हंसते चले गए थे।
तुम में कुछ तो जरूर है। वो उलझा हुआ था। हाँ, भूत हूँ मैं। सीमी ने आंखें बड़ी की। खिजर के तासुरात उसे लुत्फ अंदोज कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। मैं 2 कान 2 आंखें की बात नहीं कर रहा। वो बुरा मान गया। हर इंसान में इतनी चीजें मुश्तरक नहीं होती। शायद वो अनजान बन गई। मुझे कदम कदम पर लगता है जैसे कुछ है जो मुझे कुछ कहता है, पहचानो इसे। सिर्फ एक हल्के से पर्दे का फासला है और उसके पर्दे के पीछे सब कुछ छुपा है। शायद हम दोनों एक जैसे हैं या क्या? वो समझ नहीं पा रहा था और सीमी उसको समझाना नहीं चाहती थी। उनमें शायद एक पर्दे का फासला नहीं था, एक इंसान का फासला था जो इस वक्त खिजर के मोबाइल पर रिंग की सूरत बजने लगा था। डियर राइटर कॉलिंग। दस्तगीर के चेहरे पर जर्दी खंडी थी। वो नकाहत ज़दा नजर आ रहे थे। शकीला की जब भी नजर पड़ती दिल दुख से लरजने लगता था और गुस्से से खोलने लगता। आप कुछ देर आराम कर लेते, वो उंगलियां चटखाने बार बार कहने लगती थी। इंस्पेक्टर अरशद इन दोनों के बीच बैठा चाय के सिप ले रहा था। भाभी ठीक कह रही हैं यार, तुम्हारी चोट गहरी है। दर्द की हालत पहले से बेहतर है, वो धीरे से बोले थे। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। शकीला उनकी बात पर खफा खफा नजर आने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, खिजर को तो नहीं परेशान किया? अभी तक तो नहीं बताया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने बहुत जज्बातियत दिखाई। अच्छा, तुम ही समझाते इसको। बात इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इतनी समझदार होकर। वो कुछ और भी कहते मगर शकीला ने तेजी से बात काट दी। हमारी इसी खामोशी का नतीजा है ये करना जरूरी था दस्तगीर साहिब। अब वो लोग आपको या खिजर को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचेंगे। वो बहुत तल्खी से कह रही थी। इंस्पेक्टर अरशद ने टेबल पर धरी अपनी कैप उठा ली। भाभी ठीक कह रही हैं, ये बहुत जरूरी था। तुम आराम करो और ये केस मुझे हैंडल करने दो। मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। शकीला का शुक्रिया वसूल करते हुए नरम मुस्कुराहट के साथ उन्होंने इजाजत चाही थी। आप देख रही हैं, आपके उठाए एक कदम ने क्या कर दिया है? मोइन ताजवर के मुकाबिल आकर सवाल कर रहा था। मोइन बाप को जेल की सलाखों से देखकर आ रहा था। थाने मगजमारी करके उनके दिमाग शल हो गए थे। घर में सबा की चीखों पुकार बददुआएं कोसे जा रही थी। अब तो जरा सी आवाज भी असा पर हथौड़े की तरह बरसती। वो सब जहनी मरीज नजर आने लग गए थे। अब ने सीमी को अपने हाथों से भगाया था और सारा इल्जाम सानिया ने अपने सर ले लिया। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी आग में झोंक दी। वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। खसूसन ताजवर से उसने कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। तुम्हें मेरी बेटियों से इतनी हमदर्दी है या अपनी नाकामी का गुबार निकालने आए हो? ताजवर के इत्मीनान में फर्क नहीं आ रहा था। वो आजकल इतने स्पॉट अंदाज में बातें करती कि जैसे कोई रिपोर्ट हो। सानिया मासूम सी बच्ची, उसी मासूम सी बच्ची ने अपनी माँ पर उठता हाथ बर्दाश्त नहीं किया और अंजाम से बेपरवाह हो गई। तुम तो मर्द थे, ये इल्जाम तुम अपने सर पर क्यों ना ले सके? जिसकी गलती होती है सजा उसी को भुगतनी चाहिए। आपने सानिया का तो सोचा होता। उसका दिल चाहा वो अपने बाल नोच ले। दोनों मेरी बेटियां हैं। सीमी सजा भुगतती या सानिया? तुम लोग कौन होते हो तय करने वाले? सीमी मेरी मंगेतर थी, उस पर नहीं मोइन। ताजवर इतने गुस्से से बोली थी कि मोइन के बाकी अल्फाज मुंह में ही अटके रह गए। भूल कर भी मत निकालना ये बात अपने मुंह से। सीमी पर तुम्हारा कोई हक, कोई रिश्ता नहीं है। उसने सवाल बुलंद किया था तुम्हारे सामने। तुमने उसे नहीं उठाया था। तुमने खुद को तमाशबीनों की सफ में खड़ा कर दिया और आपने हमारी रही सही इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया इस आदमी के हाथों, जो मेरा भांजा, मेरे खानदान के आदमियों पर असल मर्द, जिसने ना सिर्फ अपनी खाला जात का हाथ थामा बल्कि उसकी हर मुश्किल में इज्जत के साथ उसके हमरा खड़ा रहा। ताजवर के चेहरे पर फख्र और गुरूर की ऐसी परछाइयां आ गई थी कि आहाना से मोइन के कान की लुएं सुरख हो गई थी। मैंने अपनी खुशी से अपनी बेटी का निकाह उससे कराया है और ताजवर इतनी इज्जतदार जरूर है कि अपने भांजे की बीवी के साथ कोई जबरदस्ती का रिश्ता या ताल्लुक जोड़ने वाले का मुंह तोड़ दे। ताजवर के नथने फूलने पचकने लगे थे। वो सीमी को भी फरामोश करके खिजर को फोकियत दे रही थी। मोइन को लगा उसे नीचा दिखाने के लिए। इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? असलियत पहचानना जान गई हूं मैं। अपने आखिर अपने होते हैं। वो मुंह फेर गई कि अब वो चला जाए, मगर वो नहीं। सीमी को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। जिस तरह आज उसका सुराग मिल गया, इसी तरह वो भी एक दिन मिल जाएगी। तब का कुछ सोचा है आपने? वो संजीदगी से बोल रहा था। उसका लहजा संगीन था, जैसे उसे यकीन था ऐसा जरूर होगा।
ताजवर इस्तेहज़ाहिया मुस्कुराई। सिमी का हाथ मैंने जिसके हाथ में दिया है उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी मोइन, वो अपनी कलाई पर अज़म की घड़ी पहनता है, वो तुम सबको देख लेगा। आपको बड़ा यकीन है उस पर? मोइन के अंदर के मर्द को कोई दोनों पैरों से कुचल रहा था। अपने खून पर यकीन है। ताजवर की आंखें भर आई। इतने से थे तुम मोइन? उन्होंने हथेली खोलकर हाथ से उसका साइज बताया। जब तुम्हारी माँ चली गई तो मैंने मुजफ्फर को छोड़कर रात रात भर तुम्हें अपने बाजुओं में उठाया, कलाइयों का झूला बनाया और कंधों का बिस्तर। एक दूध ही तो नहीं पिलाया था तुमको, क्या गलती कर दी थी? वो गदले से आंसू ताजवर के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर फैलते चले गए। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में बड़े कड़े वक्तों में आई थी, मुख्तसर मुद्दत के लिए, मगर मुझे अपने इश्क में मुब्तला करने। आज बख्तावर जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह अपने सामने खड़ा करके बात ना कर रही होती। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी शिकवा जुबान पर लाने से ना रोक पाई थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मोइन का चेहरा रात से ज्यादा तारीख हो चुका था। मैंने अपनी माँ की सूरत नहीं देखी, मोइन ने स्पॉट अंदाज में बोलना शुरू किया। मेरे दिल में उसके लिए जज्बात नहीं जागते, उसे जज्बात में बहना नहीं आता था, लेकिन अगर आप जैसी औरत उससे इश्क करने पर मजबूर हुई तो मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि वो खुद कैसी होंगी। मोइन ने झुकी निगाहें उठाई। आंखें खाली खाली थी, दिल खाली नहीं रहा था। वो होती तो मैं आज मोइन जैसा ना होता, मेरी शख्सियत में इतनी दरारें ना होती, मुझे रात की तारीकी और दिन के अहाते में इन कमियों से ना लड़ना पड़ता। वो ताजवर की आंखों में देखता बोलता जा रहा था। मैं बहुत से लोगों की तरह अपनी ज़ात से मोहब्बत कर सकता, मुझे खुद से नजरें ना चुरानी पड़ती। मेरा दुनिया से कट कर रहने का दिल ना करता कि मुझे लगता नहीं मैं उन जैसा हूँ। मेरी नफ्सियात में जगह जगह घड़े हैं जो बावजूद कोशिश के भरते नहीं। मोइन ने एक पल को आंखों का जाविया बदला, फिर चेहरा उठाया तो 1000 लकीरों में बटा हुआ था। आपने इतना सा था जब मुझे पाला। मोइन ने अब की बार अपना हाथ बुलंद किया। फिर जब मुझे आपकी जरूरत थी मुझे दूसरी औरत की गोद में क्यों डाल दिया? मोइन के सवाल ने ताजवर पर सख्ता तारीख कर दिया। मुजफ्फर की बजाय मेरे बारे में सोचना क्यों छोड़ दिया? मेरी शख्सियत आपने क्यों नहीं संवारी? मेरी तरबियत आपने क्यों नहीं की? वो लड़ रहा था, झंझला रहा था, उसकी आंखें खुश्क थी, वो ताजवर को झंझोर रहा था। मोइन, मैं ताजवर पर जैसे किसी ने ठंडा यख पानी उंडेल दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बाहर से अखरोट की तरह सख्त मोइन इतनी गहराई में सोच सकता है। वो कभी समझ नहीं पाई उसके जहन में क्या चलता रहता है और वो कितना गहरा है। मैं आपका बेटा नहीं था, इसलिए आपने मुझे कहीं भी फेंक दिया कि लोग चाहें जैसे पालें जैसे रखें मुझे। फिर अब आप क्यों तवक्का करती हैं कि मोइन वैसा ही अच्छा इंसान बने जैसे आपके बच्चे? मोइन, तुम अच्छे इंसान हो मेरे बच्चे। ताजवर का दिल फटने लगा था। उन्होंने बेख्तियार अपनी दोनों बाहों को वाह किया था, मगर मोइन 2 कदम पीछे हटा। मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, मुझे पैदा करने वाली मर गई है। मोइन, मेरी बात सुनो, वो तड़प कर बोली थी, मगर मोइन कुछ सुनने के मूड में नहीं था। बाहर खड़ी सबा भी आज दम बखुद रह गई थी। सारी उम्र वो इस खुशी में जीती आई थी कि मोइन पर उनका पूरा काबू है और वो किसी औलाद की माँ है। नहीं, मुझे ये मोहब्बतें नहीं पसंद, उसने बिगड़े मूड के साथ कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा बुजुर्ग बाप जेल में है और मेरे लिए ये डूब मरने का मुकाम है। हमारे घर पर लोग उंगलियां नहीं उठा सकते थे, आज ठट्ठे लगाकर कह के मारते हैं। मोइन ने जमीन पर पैर मारते हुए कहा था। अपनी बहन से कहें मेरे बाप के खिलाफ कंप्लेन वापस ले। वो नाराजी से कहता हुआ बाहर निकल गया था। ताजवर अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। जो गलती करता है वो सजा काटता है, हम सब यही तो कर रहे हैं मोइन। ताजवर नम आंखों से खुद कलामी कर रही थी। मैंने सीमी के कज़न को एतमाद में लेने की कोशिश की है, उसकी साइड ले सकता है क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। शुमाइला ने खिजर को बड़ी चालाकी से अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया था। उसकी हर बात जैसे खिजर के दिल मोम करती थी। वो उस पर सीमी की मोहब्बत का जिक्र करना नहीं भूलती थी। शुमाइला, आपका शुक्रिया, लेकिन सीमी अपने कज़न के लिए कोई जज्बात नहीं रखती और मेरे ख्याल से उसका कज़न भी। खिजर ने उसकी बात सुनकर टोक दिया था। शुमाइला एक झटके से उठ बैठी। ये किसने कहा तुमसे? उसके खुशगवार मूड की धज्जियां बिखर गई थी। सीमी ने। तुमने कुछ कहा है सीमी को? बस यही कि वो अपने कज़न से मोहब्बत करती है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए हालात साजगार कर लेंगी। फिर
सिमी के कज़न ने उसका साथ नहीं दिया था। उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, ना वो उसे चाहती है। तो क्या वो तुम्हें चाहती है? शुमाइला आग बगोला हुई थी। खिजर बेसाख्ता हंसा था। ये तो वो नहीं कहती। शुमाइला पर उस हंसी ने जैसे जलती पर तेल का काम किया था। वो जल कर रह गई थी। खिजर, तुम हमारी बातें उससे क्यों करते हो? उसका तीखा लहजा खिजर को महसूस हो गया, क्योंकि ये हमारी नहीं उसकी बात थी। खिजर हैरान हुआ। फिर भी मुझे तुम्हारा इस तरह अहमियत देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? वो इंतहाई गुस्सा हो गई थी। खिजर को नागवारी का एहसास हुआ। शुमाइला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उसका लहजा भी उखड़ने लगा। वो जीता जागता इंसान है, कोई चीज नहीं कि खामोश करके एक कोने में बैठा दिया जाए। ओके सॉरी। शुमाइला ने आंखें मीच कर खुद पर काबू पाया। आजकल न जाने मुझे क्या हो जाता है। आप परेशान हैं, इतना जहन पर सवार ना किया करें। खिजर का लहजा भी नरम पड़ गया था। शुमाइला को सुकून मिला। आजकल जहन पर बहुत बोझ रहता है, कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाता। वो आंखें दबाते हुए बोली थी। खिजर को हमदर्दी हुई। आप कोशिश करें लिखने की, इससे आपके दिलो दिमाग का बोझ कम होगा। खिजर ने मशवरा दिया। सोचती हूँ बाहर में जाए, स्क्रीन की रोशनी चुभती है। पहले सिमी होती थी तो। वो कहते कहते खामोश हो गई। खिजर को उसके अल्फाज पर हैरानी हुई। आप हाथ से लिखने की कोशिश करें, चेंज अच्छा होता है। मुझे हाथ से लिखने की आदत नहीं है, वो रबानी में बोल गई थी। खिजर को हैरत का दूसरा झटका लगा था। वाकई? हाँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं टाइपिंग करती हूँ बस, वो बेजारी से कह रही थी और खिजर को यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक कहानी कई बार लिखती हूँ, पहले कागज पर, फिर फाइनल करके इन पेज पर। खिजर को उसकी एक एक बात याद थी और अब वो अपनी ही बात से इनकार कर रही थी। झूठ की यही कमजोरी है कि ये अपना पोल खुद खोल देता है। और शुमाइला अपने हाथों से अपने झूठ बताने जा रही थी। शुमाइला, आपने मेरे लिए जो प्ले लिखा था, आपको याद है? उसकी 5 लाइन क्या थी? खिजर के दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। नहीं यार, इतने माह हो गए, अब कहाँ याद होगी। वैसे भी इतना लिखना होता है कि एक प्ले की छोटी छोटी लाइंस मुझे नहीं याद रह सकती। आपका एक फेवरेट जुमला था, कहानियों में मोहब्बत हमेशा अधूरी ही अच्छी लगती है। मेरा नहीं, सिमी का। ऐसी मायूसाना बातें वही सोच सकती है। शुमाइला उकताहट से जवाब दे रही थी। आप तो अपनी कहानियों के किरदारों के नाम भी बहुत चुनकर रखती हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। कहानी को कहानी समझकर पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज में नुक्ते निकालने बैठ जाओ। लिखना मेरे लिए सिर्फ तफरी नहीं है, मैं पूरी मोहब्बत के साथ लिखती हूँ, क्योंकि कलम के हकूक होते हैं, वो हकूक अदा करने होते हैं। मुझे तो अब बेजारी होने लगी है। एक कलमकार अपने कलम से कभी दूर नहीं रह सकता। खिजर सांसें रोके उसे सुनता चला गया था। दफ्तर वो खामोश हो गई थी, मगर खिजर के लाशौर में आवाजें एक के बाद एक आती चली जा रही थी। उसने फोन कान से हटाया और कुछ सोचता हुआ तेजी से अंदर की जानिब बढ़ा था।